تو ناظرین ہم آ چکے ہیں چھٹے سٹیج پر. بہت بڑا سٹیج ہے. اس دفعہ انہوں نے بہت زیادہ رقبہ گھیرا ہوئے ہے. ملا خراتیاں کا سٹیج, مولانا عبدالغفور شدائی صاحب کا سٹیج, روحانیت سے بھرپور سٹیج, بہت بڑا سٹیج, مرکزی سٹیج, اخلاص کا نام, اخلاص کی شان, اخلاص کا داخلی سٹیج, بہت بڑا. جہاں تک حد نگاہ دیکھیں لائٹنگ ہی لائٹنگ ہے. یہ سب سہرا, اس کا سارا سہرا, اور مسجد کا جتنے انتظام ہے, اسٹیج کے جتنے انتظام ہے, یہ سارے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے یہ اس کو جوش و خروش سے مناتے ہیں. میری خوش قسمتی کہ مولانا غفران احمد صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. ان سے پتہ کرتے ہیں کہ حسب روایت حسب سابق آپ نے اس دفعہ بھی بہت زیادہ بھرپور طریقے سے ان کو سجایا ہے, اور ماشاءاللہ بہت پیاری لائٹنگ ہے. ہر اسٹیج پہ میں گیا ہوں, لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا اسٹیج بھی بہت اچھا ہے لیکن آپ کا اسٹیج بہت اچھا ہے. ناظرین یہ میرا بھی اسٹیج ہے, تو میں ان سے پتہ کرتا ہوں کہ اس دفعہ ماشاءاللہ لائٹنگ بھی بہت اچھی ہے, صفائی بھی کا بھی بہت اچھا نظام ہے, اور راداریاں بھی آپ نے بہت پیاری بنائی ہیں. حسب سابق آپ بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. آپ اس بارے میں کیا؟ جی اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم جو ہے پہلے کی طرح اپنا کام کر رہے ہیں, اور یہی ہمارا ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے اپنی حاضری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ مین بھی آپ کو دکھا رہا ہے, ہم پہلے کی طرح یہ تیاری کر رہے ہیں, اور اس میں میرا یا کسی کا کوئی بھی اس کی نہیں ہے. جو بھی ہے سب اللہ کریم نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ یہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے, اور اللہ کریم نے ہمیں یہ خدمت کرنے کے لیے چن لیا ہے. یہی ہماری خوش قسمتی ہے, اور اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ آئندہ بھی جب تک سانس ہے, سانس چل رہی ہے, تو ہم اسی طرح یہ اپنا کام جاری رکھیں. اللہ کریم ہمیں اس کام کے لیے مزید توفیق کے خاص عطا فرمائے. ناظرین اس دفعہ ہم نے ہمارے مولانا صاحب نے ہماری اسٹیج انتظامی نے تھوڑی چینجنگ کی ہے, اور تھوڑ لائٹنگ والے جناب راشد بھائی میری خوش قسمتی کے میرے درمیان موجود ہیں. ان کافی ایک گزشتہ ہفتے سے یہ کام کر رہے ہیں اور گلیاں سجا رہے ہیں. ان سے پتہ کرتے ہیں, آپ نے ماشاءاللہ بہت بھرپور طریقے سے اس سٹیج میں محنت کی ہے جو نظر آ رہی ہے. آپ آئندہ بھی اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سر یہی کہوں گا کہ میرے لڑکوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے, بہت زیادہ کوشش کی ہے, اور 4 ربیع الاول سے لے کے آج تک یہ لڑکے بھرپور محنت سے کام کر رہے ہیں, اور اخلاص کی تعلیم میں چینجنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. گزشتہ 9 سال سے ایک ہی ٹرینڈ چل رہا تھا آپ لوگوں کے پاس کہ 9 سال سے ایک ہی طرح کی لائٹنگ آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہی تھی. میرے لڑکوں نے بھرپور کوشش کر کے آپ کو اس دفعہ لائٹنگ میں تبدیلی کا موقع فراہم کیا ہے ماشاءاللہ. اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں حیران ہو رہے ہیں, اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ شہباز پور میں بھی لائٹنگ کرتے ہیں, وہ بھی ذرا بتائیں. جی شہباز پور میں ہمارے پاس 3 سٹیج ہوتے ہیں, اور ان میں فریش فلاور کا کام ہم لوگ کرتے ہیں, اور ہر سٹیج جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے, اور ہر سٹیج ایک سے بڑھ کے ایک ہمارے پاس سٹیج موجود ہوتا ہے. تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے راشد بھائی, ان سے آپ بھی رابطہ کریں. شہباز پور کے اسٹیج سب کو پیارے لگتے ہیں, تو وہ بھی انہی کی کاوش کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور ہم نے ان کو دیکھ کے ان کو بلایا ہے, اور ماشاءاللہ بھرپور بہترین صحیح فیصلہ کیا, جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں تینوں مین گلیاں بہت شاندار طریقے سے سجی ہوئی ہے, اور کل انشاءاللہ اور زیادہ سجے گی. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں. ابھی ہمارا کام رہتا ہے تھوڑا سا, اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ راشد بھائی. تھینک یو سو مچ. استاد محترم سے پتہ کرتے ہیں, یہاں پر آ کر اسٹیج کی کاروائی بڑی روحانی ہو جاتی ہے. آپ کے والد گرامی اور جناب دادا ابو جناب بابا مولانا عبدالغفور شدائی صاحب کی وجہ سے, آپ ان کے بارے میں بھی کہیں. آج سے 25 سال پہلے یہ رونق نہیں تھی. انہوں نے جو چھوٹا سا پودا لگایا تھا, آج ماشاءاللہ بہت بڑا تناور درخت بن گیا ہے, اور اس کی شاخیں ہر طرف پھیل چکی ہے. اور یہ انہی کی کاوش ہے کہ انہوں نے بالکل چھوٹے پیمانے پر جو اسٹیج اور جلوس شروع کیا تھا, آج جگہ جگہ اخلاص کا کونا کونا سجا ہوا ہے. اس
इसका सारा क्रेडिट भी हम उन्हीं को देंगे और इनको देंगे, आप उनके बारे में बताएं। जी, यहाँ पर आकर वाक़या ही देखिए, पूरा दिन जो जुलूस चलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करती हैं, तमाम सनाखान पढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पर आके जो रूहानियत होती है वो इसलिए होती है कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो ग़ुलाम हैं उनका एक भरपूर इज्तिमा होता है, और हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ़ूर शहदाई रहमतुल्लाह अलैह आपने इस शहर इखलास में इस जुलूस की इब्तदा की, और आज भी जब ये जुलूस होता है तो इसका जो सवाब होता है बेशक उनकी रूह को पहुंचता है, क्योंकि आप कोई भी सदका जारिया, कोई भी नेक अमल, कोई भी अच्छा काम करके जब इस दुनिया से जाते हैं और जब तक वो काम चलता रहता है तो मरने के बाद भी आपके नामे अमाल में वो शुमार किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जो दुरूद व सलाम का यह तोहफ़ा पेश किया जाता है तो उसका बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो पेश होता है। तो बेशक हुजूर के जो ग़ुलाम, देखें अल्लाह करीम ने फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़े तो अल्लाह करीम उस पर 10 मरतबा रहमत फरमाता है, उस पर 10 रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जब ये बात है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इन लोगों को जिस शख्स ने ये बात सिखाई हो कि आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करना है, तो वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किस कदर उसे बुलंद मर्तबा व मकाम मिला होगा। ये औलियाए कराम का और अल्लाह करीम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये उनके अपने राज हैं। हम तो बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। बस एक ही दिल में दुआ है कि जब तक सांस में सांस है ये नारा हमारी ज़ुबान पर चलता रहे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा उस्ताद मोहतरम, आप मिलाद कमेटी के एक अहम रुकन है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कल ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का जो आपने कहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा का नजराना हुजूर की बारगाह अक़दस पे पेश करें, उस बारे में भी ज़रा नाज़रीन। जी, मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये बात कहूँगा कि पिछले साल हमारे पास बहुत कम वक्त था, तो फिर भी माशाअल्लाह इस शहर इखलास में से जो दुरूद शरीफ का हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया वो 1 करोड़ से ज़्यादा था। तो देखें, तमाम बहन भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश है कि आज की रात भी है और कल का पूरा दिन भी है। कल रात को इंशाअल्लाह ताला इज्तिमाई दुआ होगी, तो हमारी कोशिश भी यही है कि जितना भी ज़्यादा हो सके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजें। देखें, एक शायर ने बहुत खूबसूरत कहा कि अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का कि दुरूद तुझ पे पढ़ें और ख़ुद संवर जाएं। बात तो ये है कि हम बेशक दुरूद सरकार की ज़ात के लिए आप पर हम सलामती भेज रहे हैं। हम क्या हैं सलामती भेजने वाले, हम तो आपकी बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करते हैं, लेकिन जो कुछ भी मिलता है वो हमें फैज़ मिलता है, हमारे फ़ायदे के लिए होता है। दुरूद शरीफ भी हमने अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अजर व सवाब के लिए पढ़ना है। बस अक़ीदत और मोहब्बत सबसे बढ़कर के अदब होना चाहिए और दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि हर इबादत, जो भी जितने भी मामलात हैं, उनकी शुरुआत सबसे पहले यही है कि दिल में इश्क़ रसूल होना चाहिए। जब तक इश्क़ रसूल नहीं तो कुछ भी बाकी नहीं। अगर दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो फिर ये जहाँ भी है और वो जहाँ भी है।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जनाब ये थे मौलाना गुफरान अहमद कुरैशी साहब। अब मैं पता करता हूँ नियाज़ भाई से कि आप इस दफ़ा क्या देख रहे हैं, कि क्या चेंजिंग है और कितना जोश खरोश। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीम भाई, इस दफ़ा हमारे लड़कों ने जो मेहनत की है वो एक काबिल दीद है माशाल्लाह। छोटे से छोटा बच्चा मैं सुबह से देख रहा हूँ कि जिसको भी कोई काम बोला जाता है वो इतने जज्बे से आगे बढ़ रहा है कि उसका जो हौसला है वो कहीं गुना जो है बढ़ के सामने आ रहा है माशाल्लाह। वसीम भाई, इस दफ़ा एक तो अल्लाह पाक उनकी रिज़्क़ में इजाफ़ा करे जिन्होंने हमें ये जगह अनायत फरमाई है माशाल्लाह। उनकी बहुत अच्छी काविश है। हमें बहुत मसला होता था ट्रैफिक का, इस दफ़ा आप देख रहे हैं कि एक रास्ता भी खुला है, कोई रुकावट नहीं हो रही, आवाम आराम से गुज़र रही है और हमारे पास एक वसी जगह है, हम बआसानी अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। और मेरे जितने भी स्टेज के इंतज़ामिया हैं, दोस्त हैं, उनके ज़हन में, उनके दिल में सिर्फ एक ही बात है कि हमारी एक छोटी सी हाज़री है, अगर वो हाज़री हमारी कबूल हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी क्या आखिरत भी सवर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नियाज़ भाई, आप वाकई बेहतरीन बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी पता करना चाहता हूँ कि इतनी लाइटिंग, इतना वसी प्रोग्राम, इतनी गहमा गहमी, इतनी ज़्यादा इंतज़ामिया, इन्हें संभालना एक मसला बनता है। बहुत ऐसे तरीके से आप ये कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये अगले साल इससे भी बढ़कर होगा? सर, हमारी यही कोशिश है कि हर साल हम एक स्टेप आगे लें और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी, पहले हम एक पार्टी आती थी हमारी लाइटिंग के लिए, इस दफ़ा हमने दो मंगवाई हैं। इसलिए मंगवाई हुई हैं कि हमारी कोई जगह ऐसी ना बचे जिस पे आवाम ये कहे कि यार ये हो जाना चाहिए था। तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा हमारा कुछ ज़हन और भी दोस्तों से मशवरा कर रहे हैं और बन रहा है कि इससे बेहतर इससे बढ़ चढ़ के होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नियाज़ भाई। ये थे नियाज़ भाई, हमारे इमरान भाई जो सदर हैं इस स्टेज इंतज़ामिया के, बहुत भरपूर तरीके से। इस दफ़ा आपने लाइटिंग की 2 टीमें मंगा ली हैं, बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। आप कैसे समझते हैं कि क्या आइंदा साल इससे भी बढ़कर होगा? इंशाल्लाह इससे भी बढ़कर होगा। ये सरकार का मीलाद है तो ये तो हर साल बढ़ता चला जाएगा माशाल्लाह। अल-फलाह वेल्डिंग के ये सरपरस्त आला इमरान भाई बच्चों की तरह रहते हैं और बहुत बड़ी इंतज़ामिया को इन्होंने बहुत ऐसे तरीके से संभाला हुआ है। बहुत प्यारा स्टेज है, बहुत वसी, ज़्यादा आप हर साल इसे बड़ा कर रहे हैं, काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं। कितना आपका जज्बा है, कहाँ तक लेके जाएंगे? सरकार, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि वला खाना अल्लाह का जिक्र है, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह पाक की काम है ना, अल्लाह पाक खुद करता है, इंसान से कोशिश कर सकता है। बाकी ये सरकार का मीलाद है, आप देख लें, 10 साल पहले का देख लें और आप देख लें कैसा निज़ाम चल रहा है। तो आप पूरे गाँव का चक्कर लगा रहे हैं, पूरे इलाके का चक्कर लगा रहे हैं, देख लें कि बढ़ ही रहा है ये और क़यामत तक इंशाल्लाह बढ़ता ही चला जाएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे इमरान भाई, बहुत ऐसे तरीके से सारी रात काम करेंगे तब जाके कि ये कल स्टेज तैयार होगा। और अब हम, मेरा कैमरामैन आपको स्टेज का बकाया हिस्सा दिखाएगा।